आपका आज की वीडियो में। स्वागत आज है। जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है अमेजिंग स्पीच बाय मुकेश भाई अंबानी अनंत अंबानी वेडिंग। तो चलिए देखते हैं वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Our most valued family, friends and guests, especially our friends from around the world who have come from a long distance. Good evening. We have with us as our special guest today our spiritual and religious leaders. They have come specially to bless Anant and Radhika. आप सबको मेरा सादर प्रणाम और खूब खूब स्वागत। To all our guests today, on behalf of Neeta and me, I have to say that the Bharat took over and we could not welcome you as we would have liked to from our heart. So my apologies. We wanted to welcome each and every one of you, and I take this opportunity that Neeta, I along with Shaila and Viren welcome each and every one of you with a warm heart. In the Indian tradition, marriage is between two individuals, whereas a wedding is between two families and all their friends and near and dear ones. Therefore, we are profoundly grateful to all of you for sharing our joy and excitement at the auspicious wedding of Shubh Vivah Sanskar of Anant and Radhika. This is the final and the most auspicious ceremony of their divine union and the last wedding in our family. Neeta has worked very hard to curate a deeply immersive experience of India's rich culture and a spirit of a traditional Indian wedding. Over the next 2 days, participate wholeheartedly in the festivities and enjoy them to your heart's content. I am sure all of us together will make memories that will last forever. I must say that we have started well. I was overjoyed to see many of you dance rapturously in the Bharat ceremony as a part of the groom's procession. And only I thought that I could dance with my granddaughter, but Boris beat me to it. He had 2 daughters with him and he did a great job, Boris. So that truly was a hurricane, wasn't it? Now the calm has descended. It's time for the sanctified rituals of a traditional Hindu marriage in the presence of all our loved ones and well-wishers like you. On this long-awaited occasion, I invoke with utmost devotion the blessings of our Kul Devta, our Gram Devta and Ishta Devta and all the elders of the Ambani and the merchant families. The first to bless Anant and Radhika will be their doting grandparents, those who are with us today and those who are in heaven. Today I pray to the Almighty that Radhika and Anant be so blessed that their life together is filled with Sukh, Swasthya, Samriddhi and Safalta, happiness, health, prosperity and success. I also pray for the good health and limitless happiness and the boundless success for each and every one present here and your blessings for Anant and Radhika. On this auspicious day, together with all of you, we invoke Panch Tattva, the 5 foundational elements of Mother Nature that nurture all life on planet Earth so that they offer strength and sustenance to the couple. Sanatan Dharma में विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार मानते हैं। अनंत काल से विवाह व्यक्ति को समाज से, धर्म से और आध्यात्म से जोड़ता है। When marriage is performed according to the Sanatan Vidhi, it acquires the divinity of celestial unions. Just as Lakshmi resides in Vishnu's heart, Anant will always keep Radhika in his heart. This will make their married life beautiful, blissful, smooth and cultured.
The Vedas regard marriage as a duty towards humanity. Marriage is the basis of a family. Family is the basis of community. And community is the basis of society and the larger human family. Marriage thus becomes the most essential guarantor of the continuity, cohesion, and well-being and progress of the human race. Therefore, the matrimony of Anant and Radhika commits them to serve humanity as a whole. Friends, guests, ladies and gentlemen, the air is filled with spiritual aroma. Gods and goddesses have descended from heaven into this Vaikuntha Lok. All of you have settled. And now, with your blessings and good wishes, let us begin the most pious ceremony of Shubh Vivah. Thank you. Jai Shri Krishna. अंबानी जी की जो स्पीच थी ना, उसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उनका जो है ना एक अच्छा इखलाक जो है वो आपको जो है सबसे पहले जो है वो नज़र आ रहा था। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई इंडिया के और दुनिया के रिचेस्ट लोगों में जो है वो शामिल होते हैं, और उसके अलावा उसके बावजूद जो है इतना हम्बल होकर जो है वो स्पीच करना और लोगों को एड्रेस करना, और उसमें जो हमारी एक ट्रेडिशनल बातें हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी अमूमन यही कहा जाता है कि शादी एक इंसान की दूसरे इंसान से नहीं हो रही, वो एक परिवार दूसरे परिवार से जो है मिल रहा है। तो वही सेम चीज़ें आपको जो है ना वो डिलीवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ये मुझे ऐसे लग रहा था मौसम ना मेरे दिमाग की बातें थोड़ी थोड़ी पढ़ रहा है मतलब वाकई में इतने हम्बल, मतलब दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है, बट जो उनकी स्पीच थी मुझे मतलब ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही थी। 2-3 पॉइंट्स मुझे बड़े ही ज़्यादा पसंद आए हैं। एक तो मैं बोलूँगी जिस तरीके से उन्होंने सबको वेलकम किया और माजरत की कि हम सबको अटेंड नहीं कर पाए, रिसीव नहीं कर पाए, तो उसके लिए, लेकिन पूरी दुनिया से जो लोग स्पेशली इतनी एक ट्रैवल कर आए हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप खुद मतलब एज अ होस्ट जिस तरीके से लोगों को वेलकम करते हैं और उनके लिए अल्फाज का चुनाव रखते हैं या जो स्वभाव रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आता है ना, तो आप में बहुत ज़्यादा एरोगेंस भी आ सकती है। लेकिन मैं कहूँगी कि अंबानी फैमिली की ये एक क्वालिटी है कि सिर्फ ये हमें उनमें ही नहीं, उनके बच्चों में ये चीज़ नज़र आती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ आपको नज़र आते हैं। फिर उसके बाद मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जब हम प्री वेडिंग भी हम लोगों ने देखी थी, उस फंक्शंस में भी उन्होंने अपनी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। एक हस्बैंड का एक वाइफ के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत जेस्चर होता है कि उसका जो भी रोल होता है उनकी लाइफ में या घर में, वो उसको अप्रिशिएट करे, उसको कम्प्लीटली सपोर्ट करे। और यही एक रीज़न है कि उनके बच्चों में आगे जो है, मैं कहूँगी एक रीज़न तो डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी में और भी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होंगे, बट एक अच्छी तरबियत बच्चों की करना। जब बच्चे देखते हैं अपने फादर को देखते हैं, क्योंकि हम यूजली इसी तरीके से बड़े होते हैं, हम अपने माँ बाप को देखते हैं, जो वो हमें बोल रहे होते हैं हम उस पर उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, लेकिन जिस चीज़ की वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं। और तीसरी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि जिस खूबसूरती से उन्होंने शादी के रिश्ते को मतलब हाँ बिल्कुल डिस्क्राइब किया है, और मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि लाइक जो लड़की के वालिदैन हैं, जब वो इस तरह की बातें सुनेंगे ना, तो उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। ये तो चलो एक बहुत ही अमीर घराने की बात हो रही है ना, कि शादी हो रही है और अनंत और राधिका दोनों ही बहुत ही अमीर फैमिली के से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में आम लोग जो हैं उनकी भी सोच इस तरह की होना शुरू हो जाए ना, जैसे उन्होंने माँ लक्ष्मी की एक एग्ज़ाम्पल दी और बताया, और मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई कि वाकई में अगर आपको इस तरह का परिवार मिले आगे से ना, तो लड़की के लिए एडजस्ट होना और लड़की के वालिदैन के लिए किसी किस्म की टेंशन नहीं रहेगी कि भाई हमारी बच्ची को आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मुझे ये लगता है कि बड़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये होता है ना, बड़े ही मुंह में शादियां बनाकर बैठे होते हैं कि भाई हाँ कि ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स और तरह की हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम्स और तरह की है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। भाई देखें, अच्छा जीवन साथी भी जब मिलता
मिलता है ना किसी को, तो उसके दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि भाई पता नहीं कौन से मोती दान किए थे तो जो है इतना अच्छा जीवन साथी जो है वो देखने को मिला। क्योंकि भाई लिटरली आज के टाइम पे अगर बात की जाए ना, तो जैसे हम राधिका और जो है आनंद है उन्हें देखते हैं, काफ़ी लंबे अरसे से वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड हम आज के टाइम में बाकी जो यंग जनरेशन है भाई इतना टाइम आज के टाइम में कोई नहीं निकालता। सब कहते हैं बस ठीक है थोड़ा देर टाइम पास किया उसके बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। बहुत कम लोग आपको ज़िंदगी में ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपके साथ ना एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन जो है वो लेकर चलते हैं। वरना भाई एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पर आके ना बहुत सारे लोगों के लिए पैसा मैटर नहीं करता, बहुत सारे लोगों के लिए पैसा मैटर करता है। कई लोग जो है वो पैसे के लिए सिर्फ शादी कर लेते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं हमें एक अच्छा जो है ना जीवन साथी भी चाहिए। देखो मेरा ये मानना है, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले से शादी कर लोगे ना और इसकी सोच अच्छी नहीं है, आप कभी सुकून में नहीं रह सकते। अगर आपको अपनी शादी में सुकून चाहिए ना, तो आपको एक अच्छी सोच के इंसान के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। आप कम में गुजारा कर सकते हो, लेकिन हर किसी की अगेन प्रायोरिटी अलग होती है। कुछ लोगों के लिए पैसा ज़्यादा मैटर करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जब आप उनके साथ डिस्कशन करते हो, क्योंकि उनके पास अगर पैसे की कमी है तो उनके लिए प्रायोरिटी हमेशा पैसा ही रहेगी, उनके लिए प्रायोरिटी सुकून नहीं रहेगी। उनको लगेगा कि पैसे से ही सब सुकून मिलता है। सो इसलिए मैं ये बात बोलूँगी कि जो स्पीच थी उसमें जो उन्होंने अपना एक आप कह लो कि अपनी सोच लोगों के सामने रखी, और जिस तरीके से उन्होंने मतलब ये बात भी बोली कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी बात बोली कि जो देवी देवताएं हैं मतलब बेसिकली उनके आशीर्वाद के लिए जिस तरीके से भी वहाँ पर सब आए हैं, स्पिरिचुअल गुरु आए हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली मुझे लगता है कि बड़ा एक अच्छा मैसेज कन्वे करती है। बाकी एक चीज़ के लिए मैं थैंक यू भी बोलूँगी, और ये कल जो वीडियो हम लोगों ने देखी थी उसमें हमें बताया गया था कि जो अम्ब्रेला वाला एक जो चेयर थी ना जहाँ पर मतलब बैठे हुए थे, हमने गुरु बोला था, वो गुरु नहीं उनको बोलते हो शंकराचार्य। एग्जैक्टली उनको शंकराचार्य बोलते हैं। और उसके अलावा एक और कमेंट सेक्शन में जो है वो पता चला जो अंबानी स्क्वायर था ना धीरूभाई अंबानी, वो बेसिकली शादी हॉल है वो सारे, मतलब सारी प्रॉपर्टी इनकी खुद ही है। जो वेडिंग वेन्यू जो है वो इनका, उसके लिए भी थैंक यू बताने के लिए। एनीवे गाइस, ओवरऑल आप जरूर बताइएगा कि भैया आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में अच्छी एक बॉन्डिंग के लिए जो दो परिवारों की बॉन्डिंग के लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है आपके नज़दीक, ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं वीडियो बाय।